Hello students, as per of the words you can see on the screen, the laddus. The commitment I have given you in the class that in the paper of NDA you are going to have a laddus. How many? 60, 70, 80, 90. In this paper, the paper seems to be a calculative, a lengthy one, but still you can easily find laddus. A number of questions were there in the paper, exactly that what we have discussed in the class. Few ones are the exactly same questions. Let's start with the first laddu. The reason behind this, to start with the question, as in the batch, I have started the trigonometry first, and there in the on the first day, I have discussed some concepts, some tricks regarding to find maximum value and minimum value for the trigonometric function. As I used to say, ki this definitely this one, the maxima minima is a favorite topic, favorite question of for the UPSC. Now, depend करता है. I always used to add the words approach. Same time, a student can say that, sir, this was a difficult one, but at the same time, if you go with the approach, then this question will be nothing but a laddu. It's a 1 second, one line. The same words I'm using 1 second, one line. See, when you see these two together, you can clearly see this is nothing but the formula. It's a 3 sine x minus 4 sine cube x. And the next is 4 cos cube x minus 3 cos x. And how, what do we can write? This formula can be written as nothing but a sine of 3x, and even this is written as cos of 3x. तो आप ये देखिए, फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर इन फर्स्ट आवर आई डिस्कस विद यू द प्रॉपर्टी to find the maximum and minimum value, that is a sine theta and b cos theta. The maximum value, it's a square plus b square, and it's a minus under the root of a square b square. Now for this, we can see clearly a is 1. What is a? Here it's nothing, no coefficient. It's a is 1 and b is also 1. So what is your value for this? It's less than under root 2. The maximum value is under root 2 and the minimum value is minus under root 2. But what they have asked maximum value for the question. See, it's a 1 line, 1 second. For your explanation, I have written few lines, but otherwise, हमें पता यहाँ से दिख ही रहा है, it's a formula of sine theta, sine of cos theta, right है? It's a coefficient, both are 1, so answer is root 2. Clearly, it was a laddu. Let's see the next question. Even same, we have done same type of a question, not exactly same question, type. उसमें हमने 5 टर्म्स ली थी, इफ यू रिमेंबर. उसमें 2022 लिया गया था. हेयर आई हैव डिस्कस विद यू इन द क्लास कि जब भी आपके पास 73 पाई या बहुत बड़ा एंगल पाई की टर्म में आए, तो आपको उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीपल लेके आना है. अब 73 तो मेरे को दिखता ही नहीं है, मेरे को 72 पाई दिखता है. सी, इट्स योर अप्रोच एंड आई हैव डिस्कस एवरीथिंग विद यू इन द क्लास. अब आपको याद आ रहा होगा, 73 पाए, मेरे को 73 नहीं दिखता, मेरे को 72 पाई प्लस पाई बाय 3, इट्स बिकम 73. नाउ आई कैन राइट दिस एज cosecant of 24 pi plus of pi by 3, plus of pi by 3, and clearly you can see this is a multiple of 2 pi. और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, आपको याद है मेरी वर्डिंग क्या होती है कि मेरे को मल्टीपल ऑफ 2 पाई भी नहीं दिखता. तो सिर्फ मेरे को अब क्या दिख रहा है? कोसेकेंट पाई बाय 3, और वो होता है आपका 2 बाई रूट 3. सो योर आंसर माइनस 2 बाई रूट 3. सी अनदर लड्डू. ट्रिग्नोमेट्री सीम्स टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चंस. मैं हमेशा आपसे कह रहा था कि स्टूडेंट्स
out of 120 questions, it's not necessary to go for all the questions at the same time. Your strategy should be 1 hour and half hour. आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो आपको लड्डू हैं. Out of 120, search for the laddus and see another question. It's a formula cos A cos B, यानी कि cos C cos D. What is the formula for cos C cos D? It's a 2 cos sum of the angle 7 plus 5 12, that is 6 pi upon 17. Cos difference of the angle, that is pi by 17. And write this term as it is. Now after this, you need to see that your every term is matching except this one, and this do have a relation. आप देख सकते हो 6 and 17, it gives you 11. So यानी कि either you change 11 to 6 or you can change 6 to 11. अगर मैं इसको change करता हूँ 6 to 11 में, तो and I can write this as pi minus 11 pi by 17. Rest of the terms to be written as it is. And now here you can see cos 180 minus theta, that goes to which quadrant? Second quadrant. It's negative, so this will become minus 2 cos of 11 pi by 17 and cos of pi by 17 and 2 cos of 11 pi by 17 and cos of pi by 17. And what you can see, these two terms are alike terms now, one with the negative sign, one with the positive sign. So what will be your answer? 0. Tan 3 pi by 8. See, in the classes मैंने आपके साथ दो वर्ड डिस्कस किए थे, एक्टिव एंड पैसिव. Sometime we'll go with the active way, sometime we'll go with the passive way. So 4 options are your 4 friends. What you can see in this question, pi by 8. अगर आप थोड़े से भी आपको मैथ्स याद हो तो pi by 8 is 22.5, and when you multiply it by 3, so it is going to be 66 point something. Tan obvious है, 66 being an increasing function will be greater than what? Tan 60 degree. And what is tan 60? It's a under root 3, and under root 3 means 1.732. So now here in the options you can see 4 options are there. ठीक है, instead of going for the active entry you can go for the passive entry, और ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में. ऑप्शन जो थे आपके, अगर आप देख सकते हो, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है. योर फर्स्ट ऑप्शन वाज अंडर रूट 2 माइनस 1, जो कि 1.414 माइनस 1, जो पॉसिबल ही नहीं है, 1.732 से ग्रेटर ही नहीं आ सकता. सेकेंड ऑप्शन वाज अंडर रूट 2 प्लस 1, दैट इज अ 1.414 प्लस 1, दैट इज 2.414, which is definitely greater than 1.732. Let's see the third option also. 1 minus root 2, सवाल ही नहीं उठता. And the last one is minus of root 2 plus 1. फिर उन्होंने माइनस लगा दिया, again सवाल ही नहीं उठता. So the only one option, the option number 2, right है? The option number 2 is the correct answer. So it's not every time you need to do the calculation, math solve नहीं करना. Passive entry. You remember my words, students? मैथ्स को एनडीए में अगर करने जाओगे तो ये आपको भगाएगा और आप भागते रहोगे. बट इफ़ यू चेंज योर अप्रोच, आराम से क्वेश्चन को देखिए, सी व्हाट द क्वेश्चंस डिमांडिंग फ्रॉम यू, एंड जस्ट रिवाइज द रिकॉल द कंसेप्ट्स आई हैव डिस्कस विद यू. सी कोसेकेंट 2, रिमेंबर माय वर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो टेबल को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. प्रिंसिपल वैल्यूज रिमेंबर. इनवर्स में फर्स्ट टॉपिक में आई हैव डिस्कस कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टेबल 1 एंड द ट्रायंगल 1.
सी इट्स अ कोसेकेंट 2, कोसेकेंट 2 बिलोंग्स टू द टेबल, कब आता है 30 डिग्री पे, सो लेट्स राइट 30 डिग्री। और बाहर कौन है इसके, कॉट, एंड व्हाट इज कॉट 30, कॉट 30 इज नथिंग बट √3। अब बाहर कौन है इसके, tan इनवर्स, और tan इनवर्स इट्स 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो लीजिए ऑप्शन π/3 क्लियरली आपके सामने है। ये नहीं मैं कह रहा कि माइट बी वट एवर द पेपर विच सेट यू डू हैव स्टार्टिंग क्वेश्चंस माइट बी अ डिफिकल्ट वन, बट आपको करने ही नहीं थे। आई हैव डिस्कस एवरीथिंग विद यू इन द क्लास कि आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस चूज करने थे, 60 क्वेश्चंस जो लड्डू है। इवन मैंने इस वर्कशीट में जो इसमें वीडियोस में आई एम गोइंग टू डिस्कस 76-75 क्वेश्चंस, और इसमें मैं 10-15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो इससे भी और भी आसान थे, कि नहीं यार कोई बात नहीं ये ज़्यादा आसान है एज कंपैरिजन। इवन आई डिडंट एडेड सिंगल क्वेश्चन ऑफ अ मीन मीडियन। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। इन अ ट्रायंगल ABC, लेट्स क्विकली, अब ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, लीजिए ये आपका ट्रायंगल ABC आ गया। हेयर इट्स गिवन A इज इक्वल टू 4, आप जानते हो ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स काउंट होती हैं, इट्स 3 and 2। What they are asking the value of cos 3c. Again, cos 3c means it's a formula. Cos 3c means it's a formula. 4 cos cube c minus 3 cos of c. So when we see this formula, here I do require cos c. So here by using cosine formula, I can easily get the value of cos c. Cos c means it's a 9 plus 16 minus 4 over 24. 9 and 16 25, 21 upon 24, और कैंसिल करके ये आपका 7/8। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस 7/8, और ये क्या हो गया आपका 7/8। अब बताइए कि क्या आप ये कैलकुलेशंस, नो डाउट अनडाउटेडली आई कैन से दैट कि इन दिस पेपर ऑफ NDA 2022 सेकेंड उन्होंने आपकी कैलकुलेशंस चेक की हैं कि कहीं आप कोविड में कैलकुलेशन करना तो नहीं भूल गए, ठीक है, बिकॉज कोविड में आपको पता ना टीचर्स होमवर्क दे रहे थे, आप कर रहे थे नहीं कर रहे थे, नोबडी नोज, तो वही चेक कर रहे थे कि आप कैलकुलेशंस आपको भूल तो नहीं गई। सी अगेन इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, द सेम आई हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स, अभी पीछे भी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया आपके साथ कि हेयर यू कैन सी 2n π, मेरे को 2n π तो दिखता ही नहीं है, मेरे को सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन ऑफ 5π/6, साइन ऑफ -5π/6, और साइन जो है हमारा ऑड फंक्शन है। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 5π/6 एंड साइन ऑफ 5π/6, और 5π/6 मीन्स 30 into 5 150, so 150 is 1/2, 1/2, so your answer is -1/4. Let's see the next question. Sin x 25/24, x lies in 4th quadrant, and then what is the value of this? See again laddu, secant x, अभी पीछे भी रिपीट करके हटा था वर्डिंग कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू नंबर है और वो नंबर अगर टेबल को बिलोंग नहीं करता, सो इट्स अ ट्रायंगल कंसेप्ट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो ये आपके पास 7 आ जाएगा, 625 माइनस 576, राइट है। एंड नाउ यू कैन अप्लाई tan x। व्हाट इज tan x? परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव लेना है। साइन x 4th क्वाड्रेंट है, नेगेटिव लेना है, 7/25। न्यूमिनेटर में से -7 कॉमन ले लीजिए, आपके पास 25 + 24 और 24 × 25।
सो -7, 49 और 24 और 25, जैसा कि मैंने पहले भी कहा वट इन दिस पेपर दे हैव चेक्ड कि कहीं आप कैलकुलेशन तो नहीं भूल गए. सो नाउ मल्टीप्लाई टू हैव द आंसर. सी अनदर क्वेश्चन. व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, आपको tan 165 दिख रहा है, मेरे को तो 165 दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो tan स्क्वायर 15 दिख रहा है और cot स्क्वायर 15 दिख रहा है. और 2022 एनडीए 1 में भी सेम क्वेश्चन था. हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा डू रिमेंबर दीज वैल्यूज़. चलिए कोई बात नहीं, अगर वैल्यू नहीं भी याद कोई परेशानी नहीं है. इवन यू कैन कैलकुलेट. आपको पता ही है कि हाउ टू कैलकुलेट tan 15. इट्स अ 45 माइनस 30. दैट इज tan A tan B ओवर 1 प्लस tan A, ठीक है, इंटू tan B. ये आपके पास √3 माइनस 1, ये आपके पास √3 प्लस 1. और इसे आप जब रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास 4 माइनस 2 √3 ओवर 2 आ जाएगा. और लीजिए ये आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3. सो इट मीन्स tan 45 की जो वैल्यू है, tan 45 को इवन यू कैन राइट दिस एज, अगर आप इसको tan स्क्वायर 15 और cot स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan स्क्वायर 15. तो ये आपकी वैल्यू बन गई 2 माइनस √3 का स्क्वायर. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा वो रेसिप्रोकल होके आएगा क्योंकि वो cot की वैल्यू है. बट आप जानते हो अगर इनका स्क्वायर का डिफरेंस सेम हो यानी कि 1 हो तो आप इसे रेसिप्रोकल को सेम लिख सकते हो विद द पॉजिटिव साइन. अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल गिव्स यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ दैट इज 4√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ 4√3. ये ट्वाइस आपका कैंसिल हो जाएगा. 7 प्लस 7, so quickly 14 is the answer. Let's see the next question. Here in this question it's given 1 plus sin x plus cos x, where x belongs to 0 to 360. How many values x can take? So again, as you saw this question in the paper, you can clearly see it's a plus b, a minus b. So this will be written as sin square x minus cos square x इक्वल टू 0. और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप जानते हो इट्स अ फॉर्मूला, बट फॉर्मूला ऑफ cos 2x और नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको. तो ये आपके पास cos 2x का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 0. एंड यू कैन राइट दिस एज cos 2x इक्वल टू 1/2. और यहाँ पर है चांस ऑफ मिस्टेक. ये देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी अप्रोच, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जामिनर क्या दिखाना चाहता है और क्या आप देखते हो. जैसे आपने 0 to 360 देखा होगा आपको लगा होगा कि ये फर्स्ट एक सर्कल की बात कर रहा है, एक साइकिल हो गया. तो यहाँ पर तो कॉस जो है पॉजिटिव आपका यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साइकिल x विल टेक 2 वैल्यूज. बट हेयर यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारा x है वो 2x है. सो इट मीन्स जब हम 2x की बात करेंगे तो जो साइकिल है आपका वो 0 से 720 चला गया. सो जहाँ पर आपका एक साइकिल होना था अब वहाँ पर आपके 2 साइकिल होंगे. यानी कि एक से अगर वैल्यू 2 आ रही थी तो अब आपकी x की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 4 वैल्यूज हो जाएंगी. तो x इज इक्वल टू 4. x विल टेक 4 वैल्यूज. सी अनदर लड्डू. cos 36 cos 72. हम स्टूडेंट्स कितनी बार बोलते हैं 18, 36, 54, राइट है. तीनों की वैल्यूज़ याद रखिए. अगर वैल्यूज़ याद नहीं है, अब ये कहूँगा मैं, ये जो क्वेश्चन है ये लड्डू उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इनकी वैल्यूज़ को क्रैम किया हुआ है. आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ को पुट करना था, सिंप्लीफाई, और आपका आंसर. अब जिनके लिए लड्डू, उनके लिए जिन्होंने वैल्यूज़ याद की हुई हैं. जिन्होंने नहीं याद की हुई उनके लिए स्ट्रगल हो सकती है, एग्री. चलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, इसमें मैथ्स नहीं है. क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ स्टेटमेंट की लेंथ है. consider a statement of the line passing through origin
and inclined at 75 degree with the positive direction of x axis. स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन ऑफ स्लोप होती है, याद है कि नहीं याद? हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट है? तो ये आपको स्लोप दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्लियरली यू कैन डायरेक्टली राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, और m जो है हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्लोप। और m जो है आप जानते हो इट्स अ tan ऑफ 75, tan ऑफ 75, tan 75 यानी कि इट्स अ tan 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, इट्स अ √3 प्लस 1 और √3 minus 1. So this will gives you 4 plus 2 √3 upon 4, और that is 2 plus √3. So ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से you can frame equation y is equal to m, that is 2 plus √3 of x. ये this is the required equation. ये जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, but they haven't asked the equation of a line. They have given the words the line passes through. तो passes through in the coordinate geometry स्टूडेंट आप जानते हो कि पॉइंट को पुट करके चेक कर लो। अब पॉइंट को जब पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y जो है आपकी दैट इज 2 माइनस √3, and what is the value of x? It's 1. So when you simplify or rationalize your left hand side, so what you will see that it's a both will be same. So it means your first statement is true. Your first statement is true. The second, the line entirely lies in the first and third quadrant. The line entirely lies in first and a third quadrant. तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करनी है आपको। अगर मैं कहूँ ये मेरे क्वाड्रेंट्स हैं, राइट है, एंड दे आर सेइंग द लाइन लाइज 75 डिग्री। आप जानते हो अगर कोई भी लाइन 75 डिग्री पे होगी तो ऐसे इंक्लाइंड होगी, और लाइन जो है वो तो दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज हो सकती है ना, तो इस डायरेक्शन में जाएगी 75 के साथ, तो इस डायरेक्शन में भी जाएगी। तो आप देख सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अ थर्ड क्वाड्रेंट। सो यस, द लाइन डू लाई इन द फर्स्ट एंड अ थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, ना ऑन सीइंग दिस क्वेश्चन आई एम वेरी मच श्योर कि आपको याद आ गया होगा कि सर ने तो ऐसे 5 क्वेश्चन करवाए थे और कहा भी था कि ये टॉपिक यूपीएससी वालों का फेवरेट है। आप चेक कर लो, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही हुआ है। अगर आपको याद हो, दिस टॉपिक्स इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको ये क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट दिया हुआ है। इट्स गिवन मिड पॉइंट 3,4, और इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी डिस्कस की है। नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, इवन आई हैव डिस्कस 4 to 5 क्वेश्चंस। यू कैन डायरेक्टली राइट a इज डबल, b is also double. So equation of intercept form x upon this y upon 8 equal to 1, right है। तो यहाँ से आपका LCM आ जाएगा 24, 6 4 दा 24, 8 3 दा 24, और लीजिए ये हो गया 24। या तो ऑप्शन में ये लिखा होगा और इधर -24 लिखा होगा। सो इट वॉन्ट टेक योर मच टाइम, इट्स अ 1-2 सेकेंड सम्स। सिर्फ विजुअलाइजेशन, मैं बार बार आपको क्लास में भी कह रहा था कि चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के चलिएगा, पेपर मुश्किल कभी नहीं होता, बट चीज़ों को समझिए कंसेप्ट्स के साथ। क्वेश्चन में ये देखिए कि व्हाट दे आर आस्किंग, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये जानबूझ के मैंने सम पिक किया है क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी और आपको कहा भी था कि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मैं वर्ड बोलूँगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि यस सर, वी डू रिमेंबर, इट्स अ कोऑर्डिनेट सर्कल। आपको याद हो, कोऑर्डिनेट सर्कल मीन्स अ सर्कल विच passes through origin
and also from the 2 points where that 2 points lie on the x axis and y axis. आप ये देखिए what they have given the intercepts, positive intercepts on axis. Positive intercept means यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा हमारा, this will be your 4,0 and this will be your 0,6. और तीसरा तो पता ही है, it's a origin. So equation of a circle passes through 3 points including origin, और इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सर्कल. और अगर आपको याद हो, इसकी इक्वेशन लिखी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0. क्लास में लेट मी रिकॉल द वर्ड्स दैट आई हैव गिवन लास्ट ईयर 2022 एनडीए अप्रैल. द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बीन देयर इन द एग्जाम, पर वहाँ पर कोऑर्डिनेट स्फीयर था. और मैंने कहा भी था ये इनका फेवरेट रहता है, कोऑर्डिनेट सर्कल, कोऑर्डिनेट स्फीयर. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है बट बेस उसी के ऊपर ही है. अगर तीनों पॉइंट्स पता है आपको, नाउ यू कैन सी व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. इट्स अ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए इज योर 4 एंड बी इज योर 6. लीजिए, ये तो हो गया सर्कल. अब वो क्वेश्चन में बात कर रहा था इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर हो गया आपका 2 3. अब सेंटर लाई करेगा ऑन, नीचे आपको 4 लाइंस दी हुई थी, राइट है. तो आपको सिर्फ चेक करना था कि सर्कल किस लाइन पे लाई कर रहा है. क्लियर है. तो अगर आप ये देखेंगे कि सर्कल किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो फॉर दैट इक्वेशन नंबर 3 आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके चेक करनी थी. और इक्वेशन नंबर 3 है आपकी 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका माइनस 12 प्लस 6 जो कि 0 होता है. तो इक्वेशन 3. ये भी क्वेश्चन हमने कहा भी हुआ है आपको स्टूडेंट की, इंपॉर्टेंट है. सी लड्डू, वाकई लड्डू था. लीजिए, ये क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. मिसलिनियस की एक्सरसाइज निकालिए. लास्ट क्वेश्चन देखिए जाके. इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स. जब भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है जो 2 पॉइंटों से पास करेगी, तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी. पास करने का मतलब होता है, आप जानते हो, पासिस थ्रू मीन्स पॉइंट को पुट करना है. पहला पॉइंट पुट करेंगे आप, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 9 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसे हम लोग 9a प्लस 4b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं एज पर ऑफ 10th क्लास मेथड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशंस. सेकेंड इक्वेशन जो आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी इट्स अ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज नथिंग बट अ a plus 36b equal to 1. Now need to solve these two. आप एक काम कर सकते हैं. Now what you can see, 4 36, let's quickly multiply it by 9, या इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So it's better to multiply first equation by 9. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 9 से करेंगे तो दिस विल गिव्स यू 81a एंड दैट इज 36b इक्वल टू 1. दिस इज योर a प्लस 36b इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्ट, दिस गिव्स यू 80a इक्वल टू, राइट है, आई एम सॉरी, यहाँ पर 9 भी आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 8. सो a इज इक्वल टू 8 बाई 80, दैट इज 1 बाई 10. सो यहाँ पर आप जानते हो कि जो हमारा a था वो 1 बाई ए स्क्वायर दैट इज़ 1 बाई 10. सो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 10. दिस द वैल्यू ऑफ a. सेम वे यू कैन कैलकुलेट b आल्सो, राइट है. अब आप यहाँ से अब b कैलकुलेट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a बैक इन द इक्वेशन. व्हाट इज़ योर a? इट्स 1 बाई 10 प्लस 36b इक्वल टू 1. 36b इक्वल टू 9 बाई 10. सो b इज इक्वल टू 1 बाई 40. तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 40. आफ्टर दिस दे हैव आस्क्ड टू फाइंड एसेंट्रिसिटी.
और वो फॉर्मूला आप जानते हो, 1 माइनस ए स्केयर अपॉन बी स्केयर। सो ए की वैल्यू आपकी 10 है, बी की वैल्यू 40 है, तो 1 माइनस 1/4 अंडर द रूट, तो आपका आंसर आ गया √3/2। हाउ इजी। तो एसेंसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3/2। 10th क्लास एंड एनसीईआरटी +1। चलिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। सी, while doing the set theory, वेन डायग्राम में मैंने आपके साथ एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस किया था और कहा भी था कि इन वेन डायग्राम, इन द प्रॉब्लम फॉर द 3 सेट्स, यू आर गोइंग टू हैव ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और स्पेशली मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास एग्जैक्टली 2 आता है, डू रिमेंबर माई वर्ड्स, एग्जैक्टली 2 वाला कभी भी वेन डायग्राम से नहीं सॉल्व होता। एग्जैक्टली 2 के लिए यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला A union B union C, that is n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B, B intersection C and C intersection A plus n of A intersection B intersection C। और जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल है वो 15 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट है। और जो पहले वाले गेम को मेडल दिए गए हैं, पहली वाली गेम आप कोई भी नाम दे दीजिए, बास्केटबॉल, ठीक है, जिसको मर्जी, ठीक है। टोटल मेडल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15x है। एंड इफ द अवॉर्डेड 5x मेडल इन द बास्केटबॉल, लेट्स से it's a 5x for the basketball and 4x plus 15 medal for the football, it's a 4x plus 15 and x plus 25 medal in volleyball, तो x plus 25। ये तो हो गए आपके 3 गेम्स के, ठीक है। अब जो चीज़ उन्होंने पूछी थी एग्जैक्टली 2, मैंने इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया, और जो कि मैंने वहां भी आपको यही बताया था, आप इसे m लिख देंगे प्लस, और जो ऑल 3 वो क्वेश्चन में मेंशन है x। सो यहां से अब हमें सिर्फ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। सो हेयर यू कैन सी इट्स अ 15x, 5 plus 4 9, 9 plus it's a 10 of x plus 1x is also there, that gives you 11x। और ये हो जाएगा आपका 15 and 25, that gives you 40 and minus of m। So what is your value of m? That is 11x, right? It's a 11x minus 15x plus 40, or we can write 40 minus 4x। So what is the value of m? 40 minus 4x। बट यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है, जो हम क्लास में भी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली 2 वाले के लिए कभी भी आपको ये वाला आंसर नहीं लेना। इस आंसर के बाद आपको एक स्टेप और ऐड करना है, -3 टाइम्स ऑफ द ऑल द 3 मेडल्स। तो यानी कि ये आपका अब आया आंसर 40 minus 7x। यही चीज हमने क्लास में कितनी बार डिस्कस की थी कि स्टूडेंट एग्जैक्टली 2 वाले के लिए आप पहले फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट स्टेप में 3 टाइम्स माइनस करेंगे, राइट है। सो नाउ योर आंसर विल बी 40 minus 7x। तो 40 minus 7x विल बी द आंसर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2। अगर आपने पिछला सम किया है तो ये भी हो गया, यानी कि 2 भी हो सकते हैं मेडल और 3 वाले भी हो सकते हैं। As you have calculated 40 minus 7x for the 2, जो कि आपने कैलकुलेट किया है 40 minus 7x, तो 3 वाले में तो एक ही तो है, x ही तो है, तो 40 minus 6x will be the answer for this question। ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रुप में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन करिए 2 फ्री, एक क्वेश्चन करिए 2 फ्री, राइट है।
Let's see the next question. How many medals in exactly one of the three sports? Exactly one of the three sports. अगर आप फटाफट से वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको समझ आ जाता है वो किस चीज़ की बात कर रहा है. वो एग्जैक्टली मतलब वो इसकी बात कर रहा है ए बी और सी की, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पोर्शन निकाल चुके हैं. ये हमने अभी निकाला पीछे स्टूडेंट. लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन करिए दो फ्री. तो यहाँ पर हमने ये जो निकाला था 40 माइनस 6x, ये था हमारा सारा आंसर. और टोटल कितने मेडल्स है हमारे पास 15x. तो 15 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दीजिए 40 माइनस 6x वाला. तो लीजिए 15x माइनस 40 प्लस 6x, राइट है. तो ये कितना हो गया आपका 21x माइनस 40, राइट है. सो 21x माइनस 40. जैसे ही आपने एक क्वेश्चन किया साथ में दो क्वेश्चन फ्री. इट मीन्स मल्टीपल में आंसर्स मिलेंगे, मल्टीपल में नंबर मिलेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अगेन सो इजी. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन आप जानते हो स्टूडेंट कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अ मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2. स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अ मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2. तो आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, इसका ट्रांसपोज लिखना था. लेट्स क्विकली राइट द ट्रांसपोज ऑफ दिस. इट्स अ 0 साइन स्क्वायर थीटा and that is of cos square theta, and this is what cos square theta, 0 sin square theta, and it's a sin square theta, cos square theta, and it's 0. ये हो गया आपका ट्रांसपोज. और इसके साथ आप लिखेंगे फटाफट से मैट्रिक्स. मैट्रिक्स चलो लिखी हुई है, हम सीधा ही काम करते हैं. लेट्स क्विकली राइट द पी. ठीक है, अगर आप P लिखोगे स्टूडेंट तो आपको दिख रहा है कि जो P की वैल्यू है वो इन दोनों को ऐड करके आएगी. जब ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है ये तो 1 बनने वाला है, राइट है. जहां साइन कॉस आ रहा है वो तो 1 बनने वाला है. ये आपका P आ गया. और P कब आएगा उसको आगे आपने 1/2 से डिवाइड भी करना है. तो लीजिए आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 0 1/2 1/2. चाहे ये भी मत लिखिए, आप सीधा ऑप्शन देखिए कि किस ऑप्शन में आपके पास ये वाले नंबर दिख रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज द आंसर फॉर योर मैट्रिक्स. अब दूसरा सेकंड पार्ट जो है उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्यू पूछा है. अब क्यू जो है हमारा वो इसका डिफरेंस होके आएगा. अगर मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो, if I'll calculate Q, the difference, it's a 1/2. So 0 minus 0 is 0. Sin square minus cos square student, it's a cos of 2 theta with a negative sign. Cos square minus sin square, it's again identity. Cos square minus sin square, it's a identity, that is cos of 2 theta. It's a 0. And sin square minus cos square, it's a minus of cos 2 theta. It's a minus of cos 2 theta, and that is cos of 2 theta, and the last one is 0. यहाँ से आप cos 2 थीटा स्टूडेंट कॉमन ले लीजिए पूरी मैट्रिक्स में से और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा. लेट्स राइट 1/2 0 एंड इट्स अ माइनस 1/2. minus 1/2 1/2 and it's a 0. Now you can see the option. Which option do have first cos 2 theta? Is there only two options carrying cos 2 theta, but only one option having a 1/2 in the denominator. Khatam. Right? In the last they have asked the minimum value of determinant. Minimum value of determinant student. So आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. अब आप जानकर हैरान होंगे स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपकी एकेडमी की बुकलेट में भी था और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस भी किया था और ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ है. मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये क्वेश्चन क्या था. सी लेट मी राइट द फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर यू. इट्स अ 0 साइन स्क्वायर थीटा
cos square theta, cos square theta, 0, sin square theta, sin square theta, cos square theta and 0. Now this time we need to solve the determinant. मैं हमेशा क्लास में भी वर्ड यूज़ करता हूँ कि समटाइम अ क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ बलून, दिखने में बड़ा होता है, करने में बहुत छोटा होगा। पिन मारोगे, पिन ऑफ कंसेप्ट मारोगे तो फट जाएगा। सी, जीरो के लिए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो ही आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सी दिस एंड दिस गेट्स ओवर, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ साइन 4 हो जाएगा। एंड देन यू विल सॉल्व फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको कॉस ऑफ 4 थीटा मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव साइन 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा। अब याद करो द सेम क्वेश्चंस वी हैव डन इन मैक्सिमा मिनिमा, राइट है। साइन 4 कॉस 4 भी किया था, अब यहाँ पर साइन 4 कॉस 4 की बजाय साइन 6 कॉस 6 आ गया। 2022 में सेम क्वेश्चन था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर 1 अपॉन साइन रेज टू पावर 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है सेम है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगाना है। व्हाट इज द आइडेंटिटी? हाउ यू कैन राइट दिस? यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस। ये 3 हो गया आपका, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3 यानी कि ए क्यूब बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो 1 बनेगा, माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ से भी याद आ जाएगा स्टूडेंट कि यस सर वी डू रिमेंबर नाउ, इट्स अ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसका जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने से ये हमारा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। नाउ लेट्स सी, दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू। अब ये भी चीज़ याद रख लो, क्लास में कितनी बार कहा था कि साइन स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट वो कुछ और नहीं, जीरो होता है। व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर? इट्स जीरो। सो 1 माइनस 3/4, राइट है। तो इसके साथ जब आप यहाँ मिनिमम वैल्यू जीरो लगा दोगे तो लीजिए आपका आंसर भी आ गया। व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्क्वायर, राइट। ओह आई एम सॉरी स्टूडेंट, हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैं मैक्सिमम पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है हमें पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर गया, ठीक है। वो कंसेप्ट ठीक है कि मिनिमम मैक्सिमम के लिए मिनिमम होना चाहिए, बट इन द क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग मिनिमम वैल्यू, दे आर आस्किंग मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो मिनिमम वैल्यू तब होगी जितना ये नेगेटिव ज़्यादा होगा, तो जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दिस का क्या होना जरूरी है? मैक्सिमम होना जरूरी है। तो इसका मैक्सिमम होने के लिए आप जानते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है? 1। सो लीजिए आपका आंसर आ गया 1/4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/4। मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने पहले डिस्कस की थी फंक्शन की वो है, अब उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव के लिए सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, अ लड्डू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे इनको तो देखना भी नहीं है, इसको तो एक आंख में करो, दोनों आंखें बंद करो तो भी आंसर निकल जाता है। कहता है इसका मॉडुलस चाहिए। बताइए, हंसने वाली बात है। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसका मॉड चाहिए तो दोनों का मॉड अलग अलग निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात ये, आप ये देखिए ऊपर और नीचे कंजुगेट है, भाई कंजुगेट का तो मॉड 1 सेम ही रहता है, उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। वाई टू कैलकुलेट? सो मॉड ऑफ द कंजुगेट ऑलवेज रिमेन्स सेम। न्यूमिनेटर का जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर का भी आंसर वही आने वाला है। तो व्हाट इज द आंसर? इट्स अ 1। चलिए अनदर का लड्डू। नाउ इट्स रिटन प्योरली रियल। आपके साथ मैंने एक स्मार्ट ट्रिक डिस्कस की हुई है। प्योरली रियल का मतलब होता है आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो होगा, योर इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। तो आप सीधा इसका इमेजिनरी पार्ट लिखिए ना, क्यों उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बातें कर रहे हो? राइट, इट्स इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? वो आप जानते हो क्योंकि मेरे को तो यहीं से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा हो, मैंने बताई हुई ट्रिक आपको। साइन थीटा जीरो, तो ये क्या बन गया आपका 2 साइन थीटा जीरो। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। These are the smart tricks, smart steps, smart concepts. With the help of that, you can have the answers in a seconds. I do say,
1 line 1 second questions. So theta is equal to n pi. इसका भाई आ गया एक और, प्योरली इमेजिनरी. सो प्योरली इमेजिनरी मीन्स कि आपका रियल पार्ट 0 होगा. सो रियल पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, वो भी हमें दिखना शुरू हो जाता है. इट्स अ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. ये क्या बन गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाय 2. ये जरूर हुआ इस बार पेपर में कि एक के साथ 2 फ्री मिलेंगे लड्डू आपको, एक के साथ 2 लड्डू फ्री मिलेंगे. और जैसे ही आप एक सम करते हैं ना, आपका खून डबल दौड़ता है, शुरू हो जाता है. पर उल्टा भी होता है, जैसे ही आपको एक नहीं आता होता तो आपका खून जो है उसको सांस रुकनी शुरू हो जाती है कि भाई ये तो चीज़ें गलत हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सी दिस क्वेश्चन इवन देयर इन 10th क्लास +1, और इससे आसान एपी का लड्डू होता ही नहीं है. आपको याद है मैंने क्लास में आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस की थी, n-1/2 इज इक्वल टू आस्क्ड -1. दैट्स इट. इट्स 1 line 1 second. स्टेटमेंट लिखी है, इंग्लिश है, आपको परेशान करने के लिए. मैथ्स तो है ही नहीं. सम ऑफ द रेशियो ऑफ द 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है. कौन सी टर्म की रेशियो पूछी है, फर्स्ट टर्म. तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला लिखवाया था n-1/2 आस्क्ड -1. तो इट मीन्स यहां पर आपके पास n की वैल्यू 1 आ जाएगी. n की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो लीजिए आपका आंसर आ गया 9/15, यानी कि 3/5. बताओ कितना टाइम लगा, हार्डली सेकेंड्स. लेट्स सी द, इसके साथ मैंने पहले क्लियर किया फ्री वाले क्वेश्चंस. चलिए फिर दोबारा से सेम वही ट्रिक. नाउ इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टर्म दे आर आस्किंग 10th टर्म. एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. या तो हो ना अलग अलग चीज हो, फिर तो समझ भी आता है. इट्स अ n-1/2 इज इक्वल टू, राइट है, आस्ट -1 तो 9 हो गया स्टूडेंट इस बार. तो यहां से आपके पास n की वैल्यू 19 आ गई. 19 को पुट करोगे तो 95 प्लस 4, और ये आपका 171 प्लस 6 दैट इज 99 और 177, राइट है. दोनों मेरे ख्याल से 3 के टेबल पे कट रहे हैं, काट दीजिए. 3 5 द 15, 3 9 द 27, 33/59 आंसर आ गया. यस और नो. चलिए लेट्स सी, ये भी इसका लड्डू ही था. अरे इसमें तो आपको करना ही नहीं था. आपको ये सिर्फ स्टेटमेंट जो इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई थी. आप डर जाओ. मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को करने मत जाना, क्वेश्चन को पढ़ना समझना. अब आपको यहीं से देखो रेशो से ही क्लियर हो रहा है. यहां पर लेट मी राइट सम Sn, लेट मी राइट Sn. ये आपको दिया हुआ है 5n प्लस 4, और ये दिया हुआ है आपको 9n प्लस 6. अरे अगर इसका एक d है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि पहली वाली जो है कॉमन का डिफरेंस स्मॉल d है और नीचे वाले का कैपिटल D है, राइट है. इफ d इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ a एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ b, राइट है. पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, दूसरी का ये है. और आपको दिख रहा है कि यार ये तो हर बार क्या होने वाला है, लेस देन 1, क्योंकि 5n को आप 9n से कंपेयर करोगे तो 9 तो बड़ा ही है, और ये 4 और 6 को कंपेयर करोगे तो 6 बड़ा ही है. तो इट मींस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमिनेटर से, तो आंसर लेस देन 1 आएगा. तो इसे आप सिर्फ डी कंसीडर कर लो तो भी आपका यहां से आंसर मिल गया कि योर कैपिटल D इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल d. कैपिटल D इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल d. है ही नहीं, मैथ्स ही नहीं है. आपको कि सर ये क्या लॉजिक हुआ, ठीक है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट तो 2an-1d आएगा. यहां पर आपका n/2 2an-1 कैपिटल D आएगा. तो आप देख सकते हो कि यहां पर ये दोनों तो सेम है. अच्छा इसमें 2 और 2 सेम है, a और a, n-1 भी सेम है. तो हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, d की. तो अगर d छोटा बड़ा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा. तो यहां से हमें दिख ही रहा है कि d की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 1 के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट, ठीक है. तुक्का भी कह सकते हो इसे आप, ठीक है ना. हिट एंड ट्रायल हम खेल रहे हैं कि हाँ यार ये ठीक लग रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है, लगा दिया हमने. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहां भी थोड़ी सी स्टेटमेंट है, इंग्लिश है,
द बेस ऑफ अ इक्वेटेड ट्राइंगल ABC with the side 8 सेंटीमीटर long along the y axis। इक्वेटल ट्राइंगल का जो बेस है वो दिया हुआ है कि वो y एक्सिस के अलोंग है, राइट है। द मिड पॉइंट ऑफ द AB इज एट द ओरिजिन, जो मिड पॉइंट है उसका वो ओरिजिन पे है, तो इट मीन्स आधी इधर साइड है आधी इधर साइड है। सो इट्स गिवन दैट 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया इधर, और ये भी इधर कितना हो गया, 4 हो गया, राइट है। और ये मेंशन किया हुआ है कि जो बेस है B वो ओरिजिन से ऊपर है, तो यहाँ C हो गया। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा क्या आ गया, मिसिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट A आ गया, राइट है। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ AB इज एट ओरिजिन। तो चलिए बाय मिस्टेकन लेट मी करेक्ट, यहाँ पर हमारा C आएगा, यहाँ आएगा हमारा A और यहाँ आएगा हमारा C। What is the equation of a line passing through 8,0 and parallel to AC? तो स्टूडेंट देखो बहुत सिंपल सी बात है, अब ये 8,0 दिख रहा है हमें यार, ये तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और जो लाइन इसके पैरेलल होगी वो ऐसे होने वाली है, राइट है। द लाइन जो होगी AC के पैरेलल वो तो ऐसे होने वाली है, यस और नो, राइट है। जो लाइन AC के पैरेलल होगी वो आपकी ऐसे होने वाली है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू AC। और क्योंकि ये कहाँ से पास कर रही है, 8,0 से, तो हमें सिर्फ ये पॉइंट निकालना था। थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको ये क्या दिया हुआ है, 4 4 दिया हुआ है। अब 10th क्लास की मेंसुरेशन आपको याद होगी कि ये क्या है, हमारा ऑल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी दी हुई है, 8, तो लीजिए 4√3। तो ये जो वर्टिसेस है हमारे पास 4√3,0 आ गई। अब 4√3,0 है और हमें ये पॉइंट पता है ये 4 है, तो दिस इज व्हाट 0,4। तो लीजिए आप यहां से लिख सकते हो स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो इसलिए आपका स्लोप आ गया दिस y2 माइनस y1, ठीक है। किसी को y2 बोल दो, किसी को x2 बोल लो, वो आपकी मर्जी है। सो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, तो ये स्लोप आ गया आपके पास AC का। और ये जो लाइन है आप देख रहे हो, अब इस लाइन का भी स्लोप तो सेम ही होगा, बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो इसका स्लोप भी कितना हो गया, -1/√3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 दैट इज 0 -1/√3 एंड x माइनस x1 दैट इज 8। ये आपका √3y हो गया, और ये कितना हो गया आपका -x + 8। तो लीजिए x + √3y इक्वल टू 8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेंथी आप इसे मुश्किल कह सकते हो, मैं इसे मुश्किल नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ छोटी सी अप्रोच थी कि आपको फिगर बनानी है, फिगर बना के इसको सॉल्व करना है। एग्री, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, किसने कहा कि नहीं सर हमने इसको छेड़ा ही नहीं, अटैम्प्ट ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया, अच्छी बात है, नहीं अटैम्प्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लड्डू और भी बहुत सारे थे, ऐसा नहीं कि ये लड्डू था, और बहुत सारे लड्डू है। लीजिए बाइनोमियल के लड्डू आ गए। अब आप क्लास में याद करिए वो टाइम जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये इनका फेवरेट यूपीएससी वालों का होता है, 1 + x⁻n वाला। दैट इज NC0, NC1x, NC2x², NC3x³ एंड सो ऑन। और मैंने कहा था इसके लिए स्पेशल जितनी x की पावर है वही आपकी r की वैल्यू होती है। यही कंसेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है, x³ और x6। तो x³ का मतलब है r की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 3। तो लीजिए इट्स अ 9c3, और यहां पर आपका आएगा p⁻6 और q⁻3, राइट है। और कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो x नहीं लेंगे। 6 वाले के लिए क्या लिखेंगे, 9c6 p⁻3 और q⁻6। और क्योंकि एज पर ऑफ दिस बाइनोमियल कंसेप्ट आप जानते हो NCX इक्वल टू NCY, राइट है। और उनका अगर सम सेम हो जाए, 9 हो जाए, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करते, तो खत्म। तो यहां से आपको क्या मिला, P3, यहां से आपको क्या मिला, Q3, अब क्या मिला,
पी क्यू, लीजिए आपका आंसर आ गया। P इक्वल टू, उन्होंने क्या पूछा आपसे, वैल्यू ऑफ Q पूछी है, तो वैल्यू ऑफ Q क्या हो गई फिर आपकी, P हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म? दिस टाइम द बाइनोमियल, तो मैं कह रहा हूं इतना सिंपल, मतलब बच्चों वाला पार्ट दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, सो मिडल टर्म आप जानते हो 9 है, इंडेक्स पावर इज 9, तो 9 प्लस 1 10, तो 10 का मतलब है आपकी फिफ्थ टर्म भी मिडल टर्म है और सिक्स टर्म भी मिडल टर्म है। लेने हमने कोफिशिएंट ही है, राइट है। तो फिफ्थ टर्म यानी कि आर की वैल्यू 4 हो गई, तो लिखिए 9c4 p रेस टू पावर 5 q रेस टू पावर 4, राइट है। व्हाट इज द रेशो? डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए रेशो। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? इट्स अ सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म में 9c5 p रेस टू पावर, यहां हो जाएगा 5 और q रेस टू पावर, ठीक है, आपका 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ 4 आएगा। अब आपको याद होगा मैंने इसके लिए भी आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताई थी, डू यू रिमेंबर दिस वन? 9c4 9c5, वैसे तो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये 1 ही होता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है, राइट है। और ट्रिक भी मैंने डिस्कस की हुई है आपके साथ कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसके लिए स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आपके पास ऊपर p बचेगा, नीचे q बचेगा, सो योर रिक्वायर्ड रेशियो विल बी नथिंग बट p रेशो q। व्हाट इज योर रेशो? p रेशो q। सी सेम, एक के साथ दो फ्री, 1 लड्डू बाय 1 लड्डू टेक 2 लड्डू फ्रॉम यूपीएससी। Consider the binomial this, under what condition the coefficient x square plus x4 are equal? तो coefficient of x square and x4 same concept students। coefficient of x square मतलब r की वैल्यू 2, coefficient of x4 मतलब r की वैल्यू 4। कोफिशिएंट्स का मतलब है 9c2 p रेस टू पावर 2 और q रेस टू पावर 2, राइट है। आई एम सॉरी, नॉट 2, 7, ये 2 क्यों लिखा हमने, राइट है। इट्स अ 9 7 एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 9c4 p रेस टू पावर 5 एंड q रेस टू पावर 4। कोफिशिएंट्स आर इक्वल। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यहां से p7 है, p5 है, तो यहां पर आपके पास p स्केयर रह गया। ये आपका 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, और ये आपके पास यहां पर q स्केयर रह गया। 9 से 9 कैंसल, सो व्हाट यू लेफ्ट? p स्केयर, व्हाट यू लेफ्ट? q स्केयर। इट्स अ 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते हो बड़ा एक्सपैंड होता है, छोटा कैंसल होता है, राइट है। सो 3 to the 6, it's a 2 4, it's a 7 रेशो 2, 7 रेशो 2 आपका आंसर आ गया। सो दे आर आस्किंग रेशो ऑफ p स्केयर q स्केयर इज 7 रेशो 2। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितने क्वेश्चन सारे के सारे ही लड्डू, और लड्डू भी मतलब ये वाले कि जो बहुत आसान लड्डू हैं। कॉन्सिडर द वर्ड क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही डाल दिया इन्होंने। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ द 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन रीड किया मेरे को अपनी ही वर्डिंग याद आ गई, और आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन स्पेशली बताया था और मैंने कहा था मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो था मैथमेटिक्स। आपको याद होगा मैंने इसके 4 केस डिस्कस किए थे आपके साथ और कहा था ये फेवरेट है, क्योंकि टीचर चारों नहीं पूछेगा, टीचर एक क्वेश्चन पूछेगा, ईदर ऑफ द वन केस। वो सेम क्वेश्चन है, यहां पर इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। कहता है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, सेम ही है। आपको यहां से वॉवल्स चुन लीजिए पहले, कितने वॉवल्स दिख रहे हैं? यू है वॉवल जी, ई है, आई है, ओ है। तो अगर 4 वॉवल्स हो गए तो क्वेश्चन में तो 8 लेटर्स हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट्स भी हो गए। 4 letter, 2 vowels, 2 consonants means your answer is 4C2, your answer is 4C2। ये तो होगी सिलेक्शन, और साथ में क्या आएगा? परमुटेशन।
4p4 विद और विदाउट मीनिंग। तो 4c2 का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, 6 इसका भी ट्रिक है 6 और इसका है 24। तो 36 इंटू 24 मल्टीप्लिकेशन उन्होंने एनडीए में चेक की है आपकी, आप जानते हो हाउ टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 864 विल बी द आंसर। How many 8-letter words with or without meaning can be formed so that consonant and vowel occupy alternative position? 8 लेटर्स हैं क्योंकि हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट है, और 4 ही हमारे पास वॉवल्स हैं। जब ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डालेंगे तो 4 वॉवल्स कैन अरेंज देमसेल्फ इन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, पर इसमें स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई 2 करना नहीं भूलना था, क्योंकि आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। दैट इज 24 इंटू 24 इंटू 2, 576 इंटू 2, 12, 14, 15, 10 और 11, 1152 right is the right answer for this question. How many 8-letter words with or without meaning can be formed so that all consonants are together? इनको देख के तो आपको लड्डू, पूरे पूरे लड्डू, ये क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा थे, तो यार आप लोगों ने क्लास में कितनी बार किए हैं। 4 कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा रख दीजिए और ये आपके 4 क्या हो गए, वॉवल्स। तो दीज कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 4p4, दीज इवन कैन अरेंज देमसेल्फ इन 4p4। बट ये जो ब्लॉक अरेंजमेंट है आपके साथ मैंने डिस्कस की थी कि जो ब्लॉक अरेंजमेंट है वो आएगी 5p1, यानी कि 24 इंटू 24 इंटू 5, यानी कि 576 इंटू 5, 2880 इज द आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे स्टूडेंट, एंड यू मस्ट डू एग्री विद मी कि सर या ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो हाउ मेनी 4-digit नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल डिजिट्स आर ऑड, ऑल डिजिट्स आर ऑड। तो इसमें क्या परेशानी है, लीजिए 4 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्टिंक्ट नहीं बोला, रेपिटेशन इज अलाउड। तो ऑड नंबर आपका 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। कितने हो गए आपके पास, 5, राइट है। How many 4-digit natural numbers are there such that all digits are odd? So first place can be filled in how many ways? 5 ways, 5 ways, 5 ways, 5 ways, right है। तो लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 25, दैट इज 625, राइट है। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है इसके बारे में तो उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज 1 3 5 7 9, सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स यू डू हैव, इट्स अ 5 ऑड नंबर्स। तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज अ 625 फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यू कैन से नेक्स्ट लड्डू। The different permutations of the letters of the word mathematics are listed as in the dictionary. How many words are there in the list before the word that start with the C? यानी कि C से पहले वाले याद रखिए, C नहीं पूछा उन्होंने किसकी बात की है, बिफोर। C से पहले वाले जितने वर्ड बन सकते हैं लिस्ट इन द बिफोर C। तो याद रखिएगा हमारे पास A है, हमारे पास B नहीं है, तो हमारे पास C है। तो इट मीन्स वी जस्ट नीड टू कंसीडर ओनली दोज वर्ड दैट बिगिन विद A, दैट बिगिन विद A। तो स्टूडेंट यहां पर आप गलती कर जाते, इन्होंने हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद C। तो इट मीन्स A से बिगिन करने का मतलब है आपका एक A फिक्स हो गया, ठीक है। So as you do have 11 letters, out of that 1 letter is fixed, so you left with 10 letters to arrange at 10 places. But as these do also carry repetition, so यहाँ पर आप देख सकते हो repetition में A 2 दिख रहे हैं, पर एक A तो फिक्स हो गया, A की repetition खत्म हो गई। तो T 2 दिख रहे हैं, so you will write 2 factorial.
m 2 दिख रहे हैं, यू विल राइट 2 फैक्टोरियल, राइट है। इज देयर एनी अदर लेटर जो रेपिटेशन में दिख रहा है? m हो गया हमारा, t हो गया हमारा, राइट है, a हम ले नहीं सकते, सो दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने पहले भी वर्ड यूज किया है। इस सब में भी स्मार्ट और कैलकुलेशंस, लेंथी, थोड़ा सा लेंथी पेपर था, एग्री कर रहा हूं इस बात से, ठीक है ना, एग्री कर रहा हूं, लेंथी था, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा ध्यान से आप करते, पेशेंस के साथ करते, चीजें बहुत आसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैट्रिक्स के अंदर फेवरेट लड्डू। आप बताइए मैट्रिक्स में कोई भी टीचर आपको क्या सिखा सकता है? यही ना कि अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, अगर आपके पास 2/3 मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट, और यहां पर अगर आपके पास 3/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप ये देखिए कि ये सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम होगा तो आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सेम पॉसिबल है। और दूसरा, जो रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स है वो कहां से आता है? इन दोनों से रिजल्ट आता है, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स, यानी कि इट विल बी गोइंग टू बी अ 2/2 मैट्रिक्स। और वही तो आपको यहां पर इन्होंने दिया क्वेश्चन में, इवन इट्स सेम क्वेश्चंस आल्सो देयर इन योर एनसीईआरटी। एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, लीजिए लिख लीजिए। वाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, लीजिए लिख लीजिए। z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, कोई परेशानी नहीं। अब सिर्फ डिस्कशन रह गया। पहला उन्होंने कहा ZY, चलिए अब Z को Y से बात कराते हैं, तो 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट किसके साथ? Y के साथ, यानी कि 2/3 के साथ, तो यहां से मेरा आंसर आएगा 3/3, लीजिए। और इस ZY को अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? X के साथ, तो व्हाट इज योर X? 3/3, तो लीजिए मेरा आंसर आया 3/3। तो 3/3 मीन्स द 3/3 इज द ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 9, तो ठीक तो कह रहा है वो कि दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद 9 एलिमेंट्स, यानी कि पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्योंकि पहले वो एक्स जेड की बात कर रहा है एज पर ऑफ बोर्ड मास, तो पहले हम एक्स लिख लेते हैं। व्हाट इज योर एक्स? 3/3। व्हाट इज योर जेड? 3/2, राइट है। पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3/3 ठीक है, दिस इज ओके, तो यहां से आपका आंसर 3×2 आएगा। और अब किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? y से, राइट है। y x z है, y x z, तो लेट्स राइट द y फर्स्ट। व्हाट इज योर y? इट्स अ 2×3, अब दिस इज व्हाट? 3×2, ठीक है। दिस विल बी योर 2×2, बिल्कुल ठीक है। 2×2 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा और 4 एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब लास्ट क्या बचा आपके पास? एक्स वाई जेड नॉट डिफाइंड। आप पहले यहां पर वाई जेड कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज योर वाई? इट्स अ 2/3। व्हाट इज योर जेड? इट्स 3/2, राइट है। योर आंसर इज 2/2, दिस इज ओके। बट अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स के, याद रखिएगा एक्स पहले लिखना है। एक्स मीन्स इट्स 3/3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों तो सेम ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी तो ठीक ही बोल रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो यानी कि मेरे तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हो गए? ठीक हो गए। तो ये था मैट्रिक्स का लड्डू, कि मैट्रिक्स में कोई भी टीचर आपको इस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकता, और ये सब बच्चों को पता होता है कि मैट्रिक्स की बेसिक कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Let's see the next question. How many quadratic equation such that sum of the roots is equal to product of the roots? लीजिए एक और लड्डू उछल के बाहर आया यूपीएससी से। सम ऑफ द रूट आप जानते हो -b/a c/a इक्वल, तो यहां से b = c हो गया। तो यानी कि मेरी क्वाड्रेटिक जो होती है ax + bx + c जो है, उसे मैं ये लिख सकता हूं ax + bx - b लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस। और इससे क्या मिला मेरे को? कुछ भी नहीं। यानी कि a एंड b कैन हैव नंबर ऑफ वैल्यूज। आप a बदलते जाइए, b बदलते जाइए, और आपके पास क्वाड्रेटिक ऐसी बनती जाएंगी। तो ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक बनेंगी?
इनफाइनाइट। कितनी क्वाड्रेटिक बनेंगी ऐसी? इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या करना था? कुछ भी नहीं। द आंसर इज इनफाइनाइट। लड्डू पे लड्डू मिले हुए थे। लीजिए एक और लड्डू। अरे ये क्या है? 2 4 6 2n, इवन नंबर, इवन सीरीज। एपी है ना, तो एपी में इवन सीरीज का आंसर क्या होता है? n/2 2a n-1 ऑफ डी। अब यहां पर अगर आपने ये गलती कर दी कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n ले लिया, वो गलत लिया, क्योंकि ये इवन सीरीज है। वो 2n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो इवन है। तो a आपका 2 हो गया स्टूडेंट्स, और n की वैल्यू आपकी n रहेगी, और a आपका 2 हो गया। When you simplify this, you will have 4 plus 2n minus 2, यानी कि 2n plus 2, और जो कि आपका n of n plus 1, यानी कि n square plus n बनेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई गलती बात है ही नहीं इसमें। और दूसरा, द एक्सप्रेशन दिस गिव्स अ प्राइम नंबर फॉर एवरी नेचुरल नंबर। देखो इसमें भी खेला था। क्या खेला था? अब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जो वो दिखा रहा है वो मत देखो, जो वो नहीं दिखा रहा, जो छुपाने की कोशिश कर रहा है, द हाइडिंग फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप वो देखो। वो पूछेगा आपसे प्राइम नंबर, हम कहते हैं ना हमें प्राइम नहीं चाहिए, हम कंपोजिट ढूंढेंगे। कंपोजिट एक ढूंढ लो, प्राइम तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, बहुत सारे। आप चेक कर लेना, आपने पक्का वही गलती की होगी। यू हैव गॉन फॉर 1 पुट किया, 5 पुट किया, 7 पुट किया, 11 पुट किया, सब आपके आंसर प्राइम आ रहे होंगे। आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अरे यार यस ये तो प्राइम नंबर है। गलत। मैंने क्या कहा? जो वो दिखाएगा वो नहीं, उल्टा देखो। यहां पर आप क्या देखते? ये क्या है? 41। अगर आप यहां पर 41 प्राइम नंबर को ही पकड़ लो तो आपके पास तीनों 41 बन गए, और जैसे ही आपने 41 कॉमन लिया तो आपके पास यहां पर 41 इंटू 43 ये बन गया। अब यानी कि इसके दो फैक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को, एक 41 और एक क्या दिख रहा है? 43। तो अगर दो फैक्टर दिख रहे हैं फिर तो ये प्राइम नहीं हुआ, तो क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? गलत। सी द वर्ड्स आई डिस्कस विद यू। अप्रोच क्या दिखाएगा, आप क्या देखोगे, आप क्या करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, वो नहीं, वो जो छुपा रहा है, हिडन ट्रूथ, ठीक है, उसे ढूंढ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का एक और लड्डू। P एंड Q बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। P और Q इसके रूट्स दिए हैं जानबूझकर। अरे आप P Q Q पढ़ते हो, आप अल्फा बीटा पढ़ लो। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर अब देखो इसी को अगर आप अल्फा बीटा में लिखते तो आपको 1 सेकंड में ये क्लिक हो जाता, अरे यार ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। यस और नो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होती है वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा माइनस 11 अल्फा बीटा। लीजिए ये हो गया आपका 13 अल्फा बीटा। अब उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? P माइनस क्यू की। अरे यार ये तो और भी आसान हो गया। P अल्फा माइनस बीटा की तो आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा अंडर द रूट। यस और नो? आपको इसकी वैल्यू 0 दी हुई है क्वेश्चन में, और आपको ये पूछा गया है, चलिए ये लो, ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। तो लीजिए ये आपका आंसर आ गया 13 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी कि 9 अल्फा बीटा। राइट है? यानी कि 9 अल्फा बीटा। क्लियर? तो लीजिए आपका आंसर आ गया 3 अंडर रूट अल्फा बीटा। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 3 अंडर रूट अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस में अल्फा बीटा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, अच्छा उसकी फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अल्फा बीटा अंडर रूट द वैल्यू ऑफ P माइनस क्यू, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। छोड़ा, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज अल्फा बीटा? C अपॉन A। तो व्हाट इज योर C हेयर? 1 अपॉन A इज 1। तो लीजिए आपका आंसर 3 अंडर रूट C आ गया, क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे, सो दैट्स वाई। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट लड्डू। 3 fair dice are tossed once.
what is the probability that they shows a different number which are in a AP, which are in AP, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखने हैं। लीजिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5 राइट है, और 4 5 6, ये सारे नंबर एपी में है, बिल्कुल ठीक है। इवन आई कैन राइट 2 3 4 तो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, राइट है। चलिए, कैन आई राइट 1 3 5? यस, आई कैन राइट 1 3 5। And then can I write 2 4 6? Yes, I can write 2 4 6 still in AP. 3 4 5 I have written. Yes, I have written 3 4 5. 2 4 6 हो गया, 1 3 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना था, पहले तो आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं। दूसरा, क्योंकि इन नंबर्स को आप स्टूडेंट जंबल भी तो कर सकते हो, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या पता 3 2 1 आ जाए, राइट है तो एपी में ही ना। उन्होंने यही कहा, बोला 3 fair dice are tossed once, what is the probability that they shows different numbers that are in AP। तो ये नंबर जो है, यानी कि 1 2 3 कैन बी अरेंज, राइट है, 3 2 1 भी तो बन सकता है। तो ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट। सो यू कैन सी ओनली these cases will be there, 2 2 4 2 6, so 6 cases will be there out of 216। so what is your answer, right है, it's 1 by 36, 1 by 36 will be the answer for this question। let's see the next question। 5 coins are tossed once, 5 coins are tossed once। तो आपको याद है स्टूडेंट, बाइनोमियल, जब किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चली जाती है। फॉर्मूला इज एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। 5 coins are tossed means n is equal to 5। what is the probability of getting most 4 tails? ज़्यादा से ज़्यादा 4 tails आए। तो 4 का मतलब है 0 भी आ सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ये तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट, इतने केसेस नहीं सॉल्व करने, उल्टा सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 आए तो इट मीन्स हम क्या निकाल देते हैं, 5 वाले केसेस निकाल लेते हैं। तो 5 के लिए किसकी बात कर रहा है, टेल्स की। तो टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो 1/2 रेस टू पावर 5 एंड 1/2 रेस टू पावर 0। तो इसे 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/32। तो लीजिए आपका आंसर आ गया 31/32। लड्डू, अनदर लड्डू, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अभी मैं यहीं पर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि एज आई डू हैव अ क्लास, आई हैव टू रश। So rest of the laddus I'll continue in the next video, but I'm very much pretty much sure कि लड्डू तो बहुत सारे थे। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही वर्डिंग मैंने आपको पहले भी यूज़ की थी कि प्लीज़ इन वाइल डूइंग सिटिंग इन द एग्ज़ाम नॉट टू रश टूवर्ड्स द क्वेश्चन। आराम से सिलेक्ट करिएगा, चुनिएगा। बहुत सारे लड्डू हैं, बहुत सारे। As comparison of the previous one, I can say that this one थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंथी, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। कंटिन्यू, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस।